اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد علیہ بیت محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. بآواز بلند صلوات. ٹائم انتہائی مختصر آج میرے حصے میں آیا ہے، تو اپنی توجہات کو بہتر بنانے کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین منی و انا من الحسین صلوات. تاریخی اعتبار سے کربلا کیوں وجود میں آئی، وجہ کیا بنی، کیا معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ معرکہ کربلا ظاہر ہو گیا. یہ ایک دو دن کی بات نہیں تھی کہ ایک دن حالات خراب ہوئے، دوسرے دن مولا حسین علیہ السلام نے قیام کر لیا. مسلسل دین کو نقصان مختلف طریقوں سے پہنچایا جا رہا تھا، اور وہ چیز جو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کو بگاڑا جا رہا تھا، اور کوئی موقع ایسا چھوڑا نہیں جا رہا تھا جہاں پہ دین خدا کی پامالی نہ کی جا رہی ہو. سوچ لیں کہ کیسا ماحول بن چکا تھا کہ یزید جیسا امیر المومنین بن گیا. دین کتنی پستیوں کی طرف جا چکا تھا، کن لوگوں کے ہاتھ میں آ چکا تھا کہ اس کے ساتھ ایسے کھیلا گیا کہ لوگ جس طریقے سے کسی بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں، جب چاہتا ہے توڑ دیتے ہیں، جب چاہتا ہے مروڑ دیتے ہیں، اس طریقے سے دین اسلام کا حشر کیا گیا. جناب سرور کائنات ہمیں بتایا کہ پروردگار نے انسان کو اشرف مخلوق بنایا ہے. اشرف المخلوق بن گیا انسان. کرامتوں کا تاج پروردگار نے اس کے سر پہ رکھا، اور پھر فخر کیا پروردگار نے کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. انسان بہترین ہے، اشرف ہے، مگر ایک لمحے کے لیے اگر سوچا جائے کہ جانور میں یعنی کہ حیوان میں اور انسان میں فرق کیا ہے. حیوان کو اگر دیکھا جائے تو کئی چیزوں میں انسان سے آگے نکل جاتا ہے. کون سی چیز؟ مثال کے طور پہ کوئی انسان بھاگے، دوڑ لگائے، اس کے مقابلے میں گھوڑا جو ہے وہ اس کو بھاگنے میں پیچھے چھوڑ دے گا، حیوان آگے نکل جائے گا. طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہاتھی انسان کو پیچھے چھوڑ دے گا. ہیبت اور خوف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو حیوان ہے شیر، وہ انسان کو پیچھے چھوڑ دے گا. ان تمام چیزوں کے باوجود بھی پروردگار نے انسان کو اشرف قرار دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان میں عقل ہے، حیوان میں نہیں.
इंसान में अकल है, हैवान में अकल नहीं है। और दूसरी चीज जो इंसान को हैवान से मुमताज करती है, हया इंसान में पाई जाती है, हैवान बेहया होता है। इंसान हया वाला होता है और वो हैवान बेहया होता है। अब एक हल्का सा मिसाल देके तो गुफ्तगू को अपनी खत्म करने की तरफ में आऊंगा कि अगर कोई हैवान अपनी मुखालिफ जिन्स के हैवान को देखता है तो उसके अंदर अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के जज्बात पैदा होते हैं, मगर यही वक्त अगर इंसान पर आए और इंसान की नजर किसी पे पड़े, किसी खातून पे पड़े, तो उसके ऊपर अकल का पहरा लगता है। अकल कहती है तूने देख तो लिया है मगर अपनी नजरों को झुका, पहले देख ये तेरी मां तो नहीं, ये तेरी बहन तो नहीं, ये तेरी रिश्तेदार तो नहीं, अगर तेरी कुछ भी नहीं लगती तो देख किसी और के निकाह में तो नहीं। ये अकल है जो इंसान की हया को अलार्म देती है कि तूने हया वाला बनना है। बड़ा गहरा ताल्लुक है इस अकल का और हया का। आपका माशाल्लाह सुना हुआ वाकया है कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता आया 3 चीजें लेकर, ईमान, हया और अकल, और कहता है कि परवरदिगार का हुक्म है इनमें से एक चीज आप रख लें, 2 जो है मुझे वापस लेके जानी है। ईमान, हया और अकल, इनमें से एक चीज नबी खुदा पसंद करें, 2 चीजें मुझे वापस लेके जानी है। जनाब इब्राहिम फरमाते हैं कि ए जिब्राइल, ये जो अकल है ना ये मुझे देता जा। जैसे जनाब इब्राहिम ने अकल का इंतखाब कर लिया, अकल को पसंद कर लिया, साथ ही जिब्राइल ने बाकी ईमान को और हया को कहा चलो मेरे साथ वापस चलते हैं। वो दोनों कहती हैं कि जिब्राइल, परवरदिगार ने एक हुक्म तुझे दिया था और एक हुक्म हमें दिया था। क्या हुक्म? ईमान और हया कहते हैं खुदा ने हमें कहा था कि जहां पर अकल रहेगी तुम दोनों वहीं रहना। जहां पर अकल रहेगी ईमान भी वहां पे होगा, हया भी वहां पे होगी। अब जो रिश्तों की इज्जत को पामाल करे, मानना पड़ेगा ना वो अकल वाला है ना वो हया वाला है। अब जिसमें हया ना हो, जिसमें अकल ना हो, वो अशरफ मखलूक नहीं, वो हैवानों से बदतर होता है, वो हैवानों से बदतर होता है। यही तो पूछता था ना यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि हमारे घर में एक पौधा है जिसे मेरे बाबा ने लगाया है, वो पौधा जवान हो गया है, उस पे फल लग गए हैं, मुझे बता वो फल मैं खा सकता हूं, मेरे लिए वो हलाल है, उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं? हुसैन मोलाते हैं कि उस दरख्त का उसके 8 अगस्त में निकले तेरे पे जाए ना मर्जल खा और उसमें से खुद उपासना जो तुझा। ऐसे यजीद के लिए मोल आया जो दां के पे बैठा, वो देश आने निकाह और अपने से कहने के बाद कौन सी करता हूं अब मसला को हमें है कि बेशान है कि वो तो किसी ने कहा बाबा आपके लिए क्या मुश्किल है, वाले आपके लिए क्या है, वो वाले अब मैं नहीं हूं। इतना बदबख्त था कि इसके गुनाह इसके बेटे भी पता। वो वक्त अब वो चुका है कि पहले कभी हमें बताना पड़ता था कि हम शिया हैं, करबला में हैं। इतना इस जमाना चुका है कि लोगों को बताना नहीं पड़ता, लोग देखकर पता कर लेते हैं कि ये करबाले हैं, ये हुसैन है। यखना हुसैन होने का ताल्लुक शिया से फकत नहीं, मैंने कहा ना जहां पर अकल होगी, जहां पर हया होगी, वहीं पर हुसैन होगा। कोई मसलक है, कोई मजहब, कोई अकीदा है, जहां पर हया है वहीं पर हुसैनियत है, जहां पर बेहयाई है
वहीं पर यजीदियत है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूं कि आज चंद जुमले जो मसाइब के मौलाना फैज अली करपालवी साहब ने यहाँ पे पढ़े, मेरा दिल चाह रहा था कि उसी को दोहराया जाए, उसी का जिक्र दोबारा किया जाए कि हमारे किसी जजालिया अच्छा कि भी आप पे सबसे ज्यादा कब है जजालिया आती हैं, आप किस वक्त बात करते हो? जब इस को ना छोड़ा मेरे लिए सबसे मुश्किल था। अब माँ की कब्र को छोड़ अपने नाना बना लेना मेरे लिए सबसे मुश्किल था। मगर जब 7 मुहर्रम पानी हुआ ना, मैं 18 भूल गई। जब 8 मुहर्रम आई मैं 7 मुहर्रम भूल। जब 9 मुहर्रम आई 8 मुहर्रम के सदमे में भूल। जब 10 मुहर्रम आई तब मैं 9 मुहर्रम में भूल गई। बीबी फरमाती कि जब अली अकबर का लाशा खैमों में आया ना, हम हर जवान का लाशा भूल गए, हर जवान का लाशा भूल। जनाब अली के जनाजे पे खड़े होके, मैयत पे खड़े होके सबने या मोहम्मद करके बयान किए और कहा कि जब करबला से आवाज आई ना कि हुसैन को कत्ल कर दिया गया है, तब मैं अली अकबर को भी भूल गई और वहां पर कोहराम बर्पा हो गया। जब ये सदाएं बुलंद हुई कि लूट लो तबर्रुकाते अली और बतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। बीबी फरमाती है कि जब फौजे अश्किया खयाम के अंदर आ गई और जब मेरी चादर छीनी गई, खुदा की कसम मुझे हुसैन भूल गया और एक ही सदा मेरे लब पे थी, वाह हिजाबा वाह हिजाबा अला लानतुल्लाहि अलैहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले